all this. I think most of the students have joined. So, okay, good afternoon, everyone. And today it is my great pleasure to welcome you all to a very important topic today for our expert lecture. I think all of you have, noticed the topic already. So, the topic is need of soft skills in engineering and business education. A true expectations from the recruiters and corporates. Okay, so now let me introduce our guest. A brief introduction about Sir, actually. So, Sir is an eminent personality in the field of technology as well as humanities. Okay, Professor Rudra Rameshwar. I think most of you have also heard about Sir previously. Okay, he has done his AmTech and IIT MTech from IIT Roorkee as well as his PhD from IIT Roorkee, alongside doing his BTech from DBE Ahmedabad and his BSc from DEI Agra. He is also a very well-known, recognized faculty in the educational and research fraternity all across India and also in abroad. So presently, he is associated and working with the Thapar Institute of Engineering and Technology as humanities, social science, and management faculty, researching in diversified areas of teaching and research. He is an internationally accredited and certified international master trainer from USA, master motivational speaker, researcher, and author, career counselor, master trainer and consultant in soft skills, member of Asia Africa Development Council, member of World Academy of Informatics and Management Sciences, among many other things. He is actively working and involved in consultancy, research, teaching. He also has an expertise in smart soft skills training, research methodology, research publication, and thesis guidance. uh, Professor Rudra sir frequently basically travels all across the country, attending and delivering different workshops, webinars, online lectures, and presentations, sharing insights from his years of experience in mentioned areas of teaching, research, training, and academics. Moreover, in India and abroad, he is well recognized faculty and enjoys the confidence of students, training participants all the place. Till date, he has trained around 25,000 plus participants who have attended, organized, and trained in his in 300 plus successful events across pan India and abroad, organized on various topics, trainings, events, webinars, and panel discussion. So we are really very grateful actually to have you today, and I'm sure that students are going to have a very insightful lecture today. So I would like to once again thank you, and so you can take the platform. We'll love Yeah, to. yeah, thank you, ma'am. So it's indeed a great pleasure for me to associate it with the Delhi Technical Campus, and a special thanks to Madam Alka and Professor Ajay Pal Indolia, who was very keen, and Yahu Vashi Madam also for the a brief introduction about me. So, guys, a very warm good afternoon to one and all present in this forum, and I'm happy and appreciating your efforts that you are part of this, because it is very difficult time to attend the sessions after the lunch. So I'm sure you had a great lunch today, and let's talk about, so it's a journey of soft skill training, and I would request all the students to please be ready with your notepad or notebook for some of the keywords which you can see and understand about different aspect, because hearing and getting some sessions like that, it is okay, but if you're noting something, it's great. So that is one thing. So thank you very much once again to the organizers, the team of Delhi Technical Campus under the leadership of Professor Alka Srivastav, and her team, like Professor Indolia, who was very keen and he was very much interested to and encouraged me to have this session like this. So I suggested this suitable topic, which is equally important for engineering student as well as management student, as this topic is also encouraging the faculties to in this session. So I would request all of you to be with me. So I'm starting the session, guys, without going further into the details. Because we have enough time, we have limited time too. And if you have any queries, guys, please drop your queries in the chat window, because that is the one platform where we can see. And so I will handle all the
all the queries related to that. So it is a nice feeling for me to associate with all of you this afternoon. Uh, and if you have any specific query, you can just let me know. Otherwise, I can take up the queries during the end time of the sessions. I request the host to allow some of the people, those who are in the waiting room. Thank you very much. So guys, it's a very important topic. Let me make a full screen. Uh, you can see here, this is a need of soft skill. It is very important. I'm also engineer. You are also engineer. I believe that I'm a scholar and a student of the science, social science, and technology because my discipline, my education in this area. So these type of sessions are actually important to sensitize our student, to sensitize our, engineering students, especially because uh, I'm also teaching at my institute, Thapar Institute, which is 10,000 plus students, engineering students in the campus. So they are lacking some of these soft skills. They are good in their technical skills, but they're quite weak. Even I can't say all the students, but yes, there are some more people like those who are associated with. So it's really important. So that's why I thought, because some of the students, they will go, because most of the student, Professor Ajay told me, mostly the students are belongs to the first year, isn't it? So that is the idea. So what are the skills required at the first year stage, first semester, maybe second semester? So that is really important for you. So, and Professor Ajay Pal Indolia, who has also given some idea that if I will take the session in both English and Hindi bilingual, so that makes sense. So I will use both Hindi and English, okay, as far as this is concerned. So you are free to choose, though I'm comfortable in both of the languages, but I will make a mixed model so that the purpose should not be defeated, because I always very strong in this. The purpose should not be defeated. If we have given the 50 minutes, okay, it should be the 50 minutes like that. Okay. So I'm thankful to each and one, every student, faculties, administrators that who are sharing their time with me through this session. So let's start. So guys, these are my details. You can note down. My name is Rudra Rameshwar, and my email ID is rudrarameshwar@gmail.com. So if any student, teacher would like to connect with me after the session, you are free to choose. I'm happy to answer and respond your queries also. So guys, here you can see a true expectations from the top recruiters, because at Thapar also I am working with the close. I have very good connection in the companies too. So these companies people, they also say that, sir, technical knowledge of the student is okay, that we can manage, but what about the soft skills? So that's why I thought, and I framed this title also, need for the soft skill both in engineering and business education, which is need of the hour. So here you can see guys, some of the statistics are in front of you. No new college grad means graduate students lack soft skills, employer says that. So here you can see, so it's a mismatch guys, यहाँ पर बहुत mismatch है. हमको चाहिए कुछ और इंडस्ट्री. सपोज आई एम इंडस्ट्री, आई एम कमिंग टू एंड रिक्रूट यू स्टूडेंट्स in different discipline. Even not the student, even the teachers, I'm sharing the factual things here in this session, because some of the students, some of the teachers, they are not that much accustomed, उस तरह से तैयार नहीं है कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में समझे. सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है. सॉफ्ट स्किल के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते. दो यू आर, आपको अगर बताया गया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया गया है तो थ्रू दिस सेशन यू विल सेंसिटाइज. आपको एक सेंसिटाइजेशन सेंसेशन मिलेगा, एक पोस्ट मिलेगा आज के सेशन से. आई एम श्योर दैट यू ऑल विल चेंज, एंड आफ्टर दिस सेशन आई कैन गारंटी दैट यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज काम ज्यादा है, समय कम है हम सभी के पास. We all know that. It is not like that somebody will work for you. Nobody can work for you, even your parents, even your teachers, isn't it? So employers want job candidates with unique humans, uniquely human. Uniquely human means we all are humans, no doubt. We all are humans, but what about the skills? What about the skill? Skill का मतलब क्या समझते हैं आप? एक दक्षता, आप किसी एरिया में दक्ष हैं या नहीं, लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, बताने में. तो आप ये सोचिएगा, मैं कुछ सवाल जवाब देके जा रहा हूँ आपको. Even we can connect some other talk also, maybe on the second or advanced stage, right? If you need, it's up to you. So unique human skills are very much important guys. So they are looking for this, but finding those candidates, it's not easy.
Companies are always saying that you will, appear. Most of the students are for first year, so probably you will go in the next semester for summer training. Maybe second year it start, maybe third year. It depends upon your curriculum, but definitely every company will see you, your behavior, your writing skills, your resume. Even I will tell you the areas where which is mostly required. आजकल कंपनीज आती है, वो कहते हैं रिज्यूम में बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है, दे आर गुड इन फिजिक्स, दे आर गुड इन केमिस्ट्री, दे आर गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बट वो बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेशन, नोट कर लीजिए, एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी ने उनको बताया नहीं, ट्रेन नहीं किया। So training is, guys, is very much important. I'm sure these 50 to 55 minutes will help you. तो देखिए यहाँ पर एक लेंस देखिए, how would you describe the process of finding qualified applicant? हम लोग सभी लोग qualified है, आप भी qualified है, मैं भी qualified हूँ, सभी लोग हैं, but for the company, are we qualified? Are we trained that way? Are we ready to take the challenge? आजकल आपको पता है इंडस्ट्री में बड़ा प्रॉब्लम है. I teach the business also, I teach both engineering also. Even this semester to my engineering student, I'm teaching one course, humanities for engineers. So humanities concerns what, it is the idea about the psychology, some economics, maybe some other aspects like ethics, isn't it? कितने सारे एरियाज है, मतलब मैं पूरे दिन आपसे चर्चा कर सकता हूँ with the same energy and all, right? So it is very difficult. तो आप देखिए 26% and 1%. तो यहाँ पर आप देखेंगे legends लिखा हुआ है, very or somewhat difficult, very or somewhat easy and don't know. तो 1% लोग मानते हैं don't know, कुछ मालूम नहीं है, और 26% लोग मानते हैं वेरी और समवॉट इजी, लोग सोचते हैं बहुत इजी है, बट द सिचुएशन इज अदर वे राउंड, सिचुएशन हमेशा अपोजिट है, वेरी और समवॉट डिफिकल्ट। देखिए 73% लोग मानते हैं, इसका मतलब तो ये मैं कंपनी का डाटा लेकर आया, बिकॉज मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी है क्लासेस में कि पहले मैं सिचुएशंस को बताता हूँ, फिर उसके सॉल्यूशंस को बताता हूँ, आई नेवर जंप डायरेक्टली टू द सॉल्यूशंस, राइट? तो आप देखिए कितना सारा गैप है। क्रिटिकल थिंकिंग, लोग थिंकिंग नहीं कर पाते, क्रिटिकल की तो बात ही बहुत दूर की बात है। यू अंडरस्टैंड? क्रिटिकल थिंकिंग, आपको एक सवाल दिया है, आपको एक सिचुएशन दे, क्या आप उसको बेस्ट सॉल्व कर सकते हो? सोचिएगा। आई एम लीविंग सम पॉइंट्स टू यू गाइस, डियर स्टूडेंट्स। इट इज वेरी इजी। इवन आप लोग के ये गुरुजन है, जो भी टीचर्स है आपके साथ है, आपके फैकल्टी है, मुझे लगता है मुझे आपको आपकी चिंता ज्यादा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर। मैंने प्रोफेसर इंदौलिया को भी बताया कि आई विल ब्रिंग ए गुड टॉपिक, आई विल सेंसिटाइज, आई विल बूस्ट योर स्टूडेंट्स एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप देखिएगा आफ्टर दिस सेशन, यू इफ यू आर नॉट वर्किंग, इट मींस यू आर फूलिंग अराउंड। आई एम स्ट्रेट अवे सेइंग दैट। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। वो नहीं बनाना है, क्योंकि आपको तैयार होना है। नो मैटर विच इंस्टीट्यूट यू आर वर्किंग, नो मैटर विच इंस्टीट्यूट आर स्टडिंग, नो मैटर व्हाट you will achieve after 2 years, 3 years. During lockdown, many people, they lost their job also because of this. तो lot of scarcity is there. कमी बहुत है, काम ज्यादा है, समय कम है, काम ज्यादा है। तो सुनना, listening skills is very important. सुनने की आदत नहीं है लोगों को, वो भी जरूरत है। आपने देखा होगा काफी लोग बड़े ईगोस्टिक मैनर में बात करते हैं। आपने कभी भी देख लीजिए अपने घर में, परिवार में, आप अपने इफ यू गो टू द इंस्टीट्यूट में जाके देखिए, आपको खुद समझिए, आप लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, तब आपको पता लगेगा। सो दीज आर सम एरियाज विच आर वेरी वंडरफुल। आप कम्युनिकेशन स्किल्स एक नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा बताता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है आपको समझना, देखना, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत जरूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस की स्टाइल अलग है लिखने की। I'm a business management faculty also. I'm also engineering faculty. When I can take you, because my specialize is electrical and electronics, right? So I can teach you that, but you can't differentiate. So over a period of time, I've generated the skill, and that's why I've decided to work upon this, to train the people. I'm a certified trainer also. अभी भी ट्रेनिंग है, अभी भी इसके आपके क्लास के बाद भी एक और मेरा क्लास है। सो कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा आप बात करोगे, लिखोगे, समझो, जल्दी कुछ नहीं है। मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे से जो बड़े लोग हैं, जो मेरे से छोटे लोग हैं, आप लोग डियर स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको बोलता हूँ, इट इज ए कॉमन मैसेज फॉर एवरीवन, कि लिखना पढ़ना सब कुछ अलग अलग है। प्लीज हैव ए पेशेंस, then slowly you will learn, because whatever the skills I have generated, this is a hard work of 21 or 22 years, isn't it? So I can write well, I can I can say that, but it could be best by others. So मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, right? इंटरपर्सनल स्किल्स, आप देखिए बहुत बड़ा गैप है इंटरपर्सनल स्किल्स।
बातचीत का तरीका कैसे करना है, इंटरपर्सनल निगोशिएशन, इंटरपर्सनल स्किल्स में आप बात कर सकते हैं, निगोशिएशन आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें, कितने एरियाज में पूरे दिन चर्चा कर सकता हूँ, बट एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया सो दैट आई कैन लीविंग समथिंग टू यू, आई कैन डिस्कस विद यू, आई कैन सजेस्ट सम सॉल्यूशंस लाइक दिस. So there is a lot much scarcity, right? So it is very difficult as well as very you can say harsh situation. अभी आप लोग जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या आप DTU में पढ़ रहे हैं, या आप दिल्ली टेक्निकल कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो आप खूब मन लगा के पढ़िए, बट ये स्किल को साथ में लेके चलिए. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द टीचर्स ऑल्सो स्टूडेंट. तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी, मैंडेटरी है. दूसरा आप देखिए, द राइज ऑफ ऑटोमेशन मीन्स जॉब कैंडिडेट्स विल नीड यूनिक ह्यूमन स्किल्स. तो कम्युनिकेशन स्किल्स, डिमांड देखिए 77%. इवन ये जो डाटा आपके सामने, ये भी थोड़ा आउटडेटेड डाटा है, बट आप फिगर दे सकते हैं, आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं. एक टर्म होता है, शायद आपने सुना होगा, आपके प्रोफेसर्स ने पढ़ाया हुआ, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड विजुअलाइजेशन. सो एज जॉब एज इंक्रीजिंग ऑटोमेटेड, आजकल आपने देखा बहुत सारे जॉब्स, IT टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, IT डिफरेंट रेंजिंग ऑफ द मैनेजमेंट कोर्सेज, बोथ इंजीनियरिंग ऑल्सो. तो मैं उस तरफ से ही आपको बता रहा हूँ. दिस सेमेस्टर आई एम ऑल्सो टीचिंग वन कोर्स, HR मैट्रिक्स. HR मैनेजर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, वो किस तरह का काम करता है. तो ह्यूमन स्किल्स आर इन डिमांड. आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे स्क्रीन में, कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, सब 70 से ऊपर है. 70%. इसका मतलब ये बहुत बड़ी स्थिति है. और कितने लोग इसकी बात करते हैं, कितने लोग इसकी चर्चा करते हैं, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, कितने लोग उसका कोई लेक्चर या कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं. हम लोग वर्कशॉप अटेंड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कहीं से पता लगता है, कि हमें जानकारी होती है कि हमें ये इस्तेमाल करना है, हमें काम करना है. और आपको पता है, वी इंडियंस हैव द मेंटालिटी टू, वी आर पुअर इन इम्प्लीमेंटिंग. हम लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. आई एम जस्ट शेयरिंग माई रिसर्च बिकॉज आई एम हार्डकोर रिसर्चर ऑल्सो. तो मैं काफी लोगों पे रिसर्च किया, प्रोफेसर्स पे, टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे. तो मुझे एक बात समझ में आ गई है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल, आप देखेंगे कोई बात, बहुत अच्छे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में, बड़े हम्बल हैं, बड़े पोलाइट है. एक 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 वर्ड आपको बताते, तो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन. एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वेरी, आई थिंक 0.5% पीपल कांट डू इवन. एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन बोलते तो सब है, हम लोग एम्पैथेटिक, विद एम्पैथी, with living life with this. I'm sure you are getting me. Okay. Easily automated skills कैसे हैं, which are not in demand? Memory skills, computer tech skills, quantitative skills, ability to repeat task. आजकल AI का जमाना है, artificial intelligence, neural network, machine learning, machine learning also. अभी एक मेरा book भी publish हुआ, you can see that, machine learning. So I still remember, from the Taylor and Francis. It is available on Amazon also. It's an edited book, but I've tried my best to showcase to the engineering electronics students, particularly for the electronics professors, those who are researchers and all. So all these things, आपने देखा होगा, jobs automated हो रही है, जो इंसान है उसका काम ऑटोमेशन में ज्यादा जा रहा है. तो हमें मशीन से डील करना है, हमें सॉफ्टवेयर से डील करना है. तो हमें ये स्किल्स जो आपके राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है, उसको बहुत जरूरी है. बोलना लिखना, अगर आप जैसा बोलेंगे सोचेंगे वैसा ही लिखेंगे, राइट. तो ये बहुत जरूरी है, आप समझिए, और धीरे धीरे आएगा. आज का तो दिन है आपको सेंसिटाइज करना. डू नॉट गो विद दिस वैल्यूज, गो विद दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड. अगर आपने पढ़ना, बोलना, लिखना सीख लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 70-80% जॉब इज रेडी फॉर यू after 3-4 years. Suppose you are in first year, so after 3-4 years, because lot many advancements are going on, government is also pumping lot of money, institutions are coming private now and then. It's a mixed model for me. If you ask me, sir, what is all this setup of the industry, I can say it's a mixed model. Okay, so this is really important for you. I hope you have understood. और नीचे देखिए, according to 2018 survey, 650 employers all over 1500 college students का सर्वे जो हुआ था, ये उसका रिजल्ट है, which was published. और अगर आप भी रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं. more or less you will get this figure, even higher than this. आज के टाइम पे आफ्टर कोरोना, because during 2018 there was no corona, no lockdown, industries were there, right? But these days, now industries are very smart, guys, please note down. इंडस्ट्रीज बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो पिक एंड चूज मॉडल लगा रही हैं. दे आर गोइंग टू पिक एंड चूज. वो देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें पिक एंड चूज मॉडल से उसको फिल्टर आउट करके फिर एग्जाम देते हैं. आजकल एक और आपको बता देता हूँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, इज रोबोटिक इंटरव्यूज. If you are well versed in communication skills and all, you can directly face the robotic interviews.
as a pre-qualification. So most of the institute, even industries are collaborating for robotic interviews, क्योंकि अब आपका पहला इंटरव्यू रोबोट लेगा, एक इंसान नहीं लेगा, एक कोई एम्प्लॉयर नहीं लेगा, आपको एक रोबोटिक इंटरव्यूज की बहुत डिमांड है. It is sooner or later it will be in your college also. So once you qualify the robotic interview, then you are eligible for the next cycle. It means what is happening in that entire framework में क्या चल रहा है कि वो सबसे पहले वो आपको फिल्टर कर रहे हैं रोबोटिक इंटरव्यू से, कितने लोग सही जवाब देंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस का. तो आपने कभी अनाउंसमेंट देखा हो, एटीएम में कभी आप गए हो तो एक कंप्यूटर आपसे बात करता है. नाउ यू कैन इंसर्ट द की, नाउ यू कैन ड्रॉप द पिन, राइट? आप करते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग द रियल एग्जांपल, ऑलवेज ब्रिंग द रियल एग्जांपल इन माय क्लास. तो वैसे ही आपका एक इंटरव्यू रोबोट एक लेगा, एक मशीन होगी, एक कंप्यूटर मशीन होगी, वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा और आपका जो आंसर है उसको रिकॉर्ड करेगा. वो रिकॉर्डेड आंसर आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा. एम्प्लॉयर वहां से देखेगा किसका आंसर बेस्ट है, वो रेटिंग भी बता देगा, लाइक 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार, लाइक दैट. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू वर्क अपॉन दीज एरिया. और ये करने के लिए भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत आसान है, कोई घबराने का जरूरत नहीं है कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, और इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस. ओके, anybody you can do, anybody you can start from today itself. एक डेटा और है मेरे सामने, 60% एम्प्लॉय सेज सॉफ्ट स्किल्स एसेंशियल्स फॉर आईटी. ये बहुत जरूरी है. कितने लोग मानते हैं? आप लोग चैट विंडो में मुझे बता सकते हैं. You know, very significant, 60%. How significant are these soft skills are important? Employees, both engineering, both MBAs, both psychology students. You can name any area, multimedia, mass media, engineering, science student, PhDs also. काफी लोग डॉक्टरेट से, बट उनको बोलने का तरीका मालूम नहीं है कि what is the best, way to speak as a public, as a PhD viva or anything like this. So this discussion is not confined towards the engineering student, but yes, especially because maximum of my audience is engineering student. So आप देख लीजिए, आपके सामने है. Level of soft skills are most important. Junior, middle, senior level पे तो बहुत लोग बात करते हैं. senior level पे आपके अगर वाइस प्रेसिडेंट ने आपको अच्छी तरह बात नहीं किया और आप रिपोर्ट नहीं बना पाए, बिकॉज पोजीशंस भी बहुत आती है, लीड पोजीशन होती है, एनालिसिस पोस्ट होती है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपने देखा होगा, राइट? अगर आप अपने राइट साइड स्क्रीन में देखेंगे, which soft skills are most important, please pay attention on the words most, not important, most important. Listening, communication, confidence, teamwork, positive attitude, creativity, persuasion, flexibility, activeness, accountability. कितने लोग लिखते हैं आप बताइए? आपको टीचर प्रोफेसर इतना होमवर्क देते हैं, अभी लॉकडाउन में काफी लोगों को दिया, कितने लोग सीरियसली पढ़ते हैं? इवन आई कैन से दैट 1 or 2% हार्डली सिट्स इन द क्लास, राइट? मुझे आपका सिचुएशन मालूम है क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, और आप इसमें लिख भी सकते हैं. इफ यू एग्री, प्लीज प्रेस साइन, थम्स अप साइन, और व्हाटएवर यू, और यू कैन रेज योर हैंड्स in the then I will see that. So it's in confirmation automatically for me, right? So it is really important for all of you guys, to work hard, to think about this. These are not superficial skills. Many people have the apprehension, काफी लोग सोचते हैं ये बहुत बहुत बड़ा इजी है, बड़ा इजी है. आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग, इंसान हैं हमारे इस सोसाइटी में, they are saying something, doing something, portraying something, and getting something, writing something, telling something. Everything is blah 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 blah. There is no synchronization at all, and smart people can easily catch them, isn't it? जो कहते हैं ना, इंटरव्यू में काफी लोग जाते हैं, many students are enthusiastic. वो सोचते हैं बच्चे में enthusiastic हूं मैं, I am a 9 CGP holder, but he or she can easily get caught by any experts like you and me. So it's really important for you. तो ये बहुत देखना जरूरी है. तो अभी मैंने आपको सिचुएशन की बात करी, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए कितना काम करना जरूरी है. आप लोग फ्री नहीं है गाइस. मैं एक और चीज बता दूं, आप लोग सोचते हैं हमारे प्रोफेसर नहीं पढ़ाते. प्रोफेसर अगर नहीं पढ़ा रहे तो आपको एक मौका मिला है गाइस. when I was at DI, आप पूछिएगा प्रोफेसर अजयपाल इंदौलिया is one of my close friend. We have studied together, right? तो जब क्लासेस नहीं होती थी तो I generally would doing some other activities like this. I think he can tell you much more in his office, right? तो वो जो समय है ना, उसका सदुपयोग कीजिए.
you use that time for your professional development. और आजकल तो हमारे पास गैजेट्स है, मोबाइल्स है, गूगल है, अच्छे अच्छे किताबें हैं, रिसर्च पेपर्स है, आर्टिकल्स है, कुछ भी आजकल स्काई इज द लिमिट गाइस. आज आप 2 मिनट में मेल लिख सकते हैं किसी को. इफ यू वांट टू डू सम टू सम प्रोफेसर्स लाइक दिस, दे विल सेंड यू. कितना मटेरियल है, मेक यूज ऑफ दिस. So this is the most takeaway I am recommending to my dear students. Please go and start working on. सब कुछ है आपके पास. डोंट बी एडमेंट मेरे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं, बिकॉज टीचर्स कुछ और काम कर रहे हैं आपके लिए, isn't it? तो आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस बदलना है. जैसे मैंने बताया ना, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, दैट यू हैव टू चेंज. एंड दिस डिस्कशन विल सर्टेनली हेल्प यू टू guide you in a better way. So I'm sure it will guide you. It is really essential for you. Here you can see some of the informations are given in front of you. You can easily watch on the screen. Okay, what is the future of the management? Actually, many people go with the engineering to management, right? Because certainly you will go. अभी आपको ये position मिलेगी assistant engineer, maybe data analyst. These are the common, because I'm well connected with the company. मेरे पास real time में आता है, JDs आते हैं, job description. काफी लोग मेरे साथ जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, आई कैन सर्टिफाई दैट आल्सो, ओके दिस स्टूडेंट और समथिंग, so it is really important for everyone to generate a different type of skills, whether you are an engineering student, whether you are a management student. काफी लोग हमारे पास मैनेजमेंट में भी आते हैं. I have trained many students. One of my students went to Europe also. He is a research officer. एक बार आए थे वो मेरे पास. So I generally help the people, but based on their skills, I can recommend, If you are good at certain point, I have the instruments also. I've developed some instruments also to judge a person's personality about the hard skill, about soft skill. Hard skills आप समझ लीजिए, जैसे आपको कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्ञान है, आपको रिलेवेंट स्किल्स पता है, आपको एक्चुएटर्स कैसे काम करते हैं, रेक्टिफायर्स कैसे काम करते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है. मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड. आप केमिकल इंजीनियर है तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग की बहुत जानकारी है. सो दोज आर हार्ड स्किल्स. आपको एनालिटिकल्स की जानकारी है, आपको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी है. आप आई ऑल्सो प्रोवाइड, आई एम वेरी गुड एट स्टैटिस्टिक्स. आई बिलीव दैट बिकॉज आई एम ट्रेनिंग मेनी प्रोफेसर्स ऑल्सो फॉर देयर PhDs, फॉर देयर मास्टर थीसिस एंड ऑल, राइट? तो ओवर ए पीरियड, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं थी, कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते कम था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च, आई हैव स्टडीड मेनी लिटरेचर्स. अभी हमारा काम एज ए फैकल्टी लिटरेचर रिव्यू करना, ये सब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप समझ रहे? तो ये बहुत जरूरी है. तो ये जो आपके सामने लिखा है, डिमांड फॉर गुड टीचर्स, आप में से कुछ लोग टीचर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे. आजकल बहुत सारे एरियाज में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो रही है. People are going to reach of the biomedical engineering, mechatronics, mechanical is electronics, right? Mechatronics is like that. So that is really important for the people that you should follow, and you should inculcate some of the habit like this. Okay, so AI in service. आजकल AI का जमाना है ना, तो आप देखिए technology is changing. Tomorrow something else will come after 2 years when you will graduate. आप लोग जब graduate होंगे, because mostly people, I believe that today, like you are in first year or maybe second year, so after 2-3 years down the line, you will all will be graduated, isn't it? So that at that point in time, AI will be there, robotic interviews will certainly be there, project management. आप note करते जाइए ये सारे areas. Project management में engineering को आना ही चाहिए, irrespective of your branch. कोई भी branch से आप हो, उसके अलावा आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया जिसमें नौकरी के लिए बहुत सारे लोग डिमांडेड है, इंडिया में भी और बाहर भी. If you want very good in IT, information technology, you can go to Israel, you can go to America, Germany. I visited some countries also for because of my teaching, research and all. तो मैंने देखा, उन लोगों से बात करी, तो जाना कि वहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है. वो लोग, they are looking for, they are open actually, and they are looking for. मेरे पास काफी मेल्स आती है, सर आप प्लीज भेजिए कुछ स्टूडेंट्स को. But the hardship is that without knowing the skills, without knowing and confirmation, how I can put someone on the wrong track or right track, depending on the situation, right? So it is really important. और इंजीनियरिंग के लिए ये वाला जो स्लाइड है, this is for soft skills to advance your engineering career. इससे आपका करियर बनेगा. तो पहला है कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स. प्रेजेंटेशन में आप कितने एक्सपर्ट, आई डू नॉट नो. और मैं एक और वर्ड ऐड कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. बिकॉज ऑलवेज माय टीचिंग पेडागोजी इज सिंक विद द
with the slides. Professional presentation. Avoid jargons. Jargons मत लिखिए आप लोग अपने जो भी टीचर्स को presentations देते हैं, आप jargons कभी मत यूज कीजिए. Short form jargons, simplify, crisp होना चाहिए. Work on the simplifying, crispy explaining concepts. Okay, so that is important. Self confidence. ये आप देखेंगे, you can look at the mouse. Self confidence. It is all about you showing what you capable enough. आप जो जानते वही बात कीजिए, नहीं तो पकड़े जाएंगे. कोई जल्दबाजी में जाओगे, कहीं ना कहीं जाके आपको कोई पकड़ लेगा. Everybody can catch you, isn't it? तो आप क्यों भाग रहे हैं? Many students I have seen, आपने भी देखा होगा, अपने colleagues को देखा होगा, by hook or by crook, different medium, they are just, doing some task and they are believing that. I think they are wrong actually at their side. I think they are wrong and definitely they are wrong. और आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जो आपको नहीं पता है वही मालूम होना चाहिए, और जो पता है उसका जरूरत उतना ज्यादा नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है, वो होना चाहिए. तो एक ये शॉर्टकट है. मेरे पास ये सवाल काफी लोग आते हैं कि सर आपके कम शब्दों में बताइए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. सो आपको भी मैं वही शेयर कर रहा हूँ. मे बी यू हैव सम दिस क्वेश्चन, और मे बी दिस क्वेश्चन इज क्रॉपिंग इन योर माइंड, कि जो आपको नहीं पता है वो होना चाहिए, वो डिमांडेड है, और जो आपको पता है वो बाय डिफॉल्ट यू शुड नो ऑल दिस थिंग. सो डोंट हाईलाइट. Humility, wonderful word. Overconfidence could sink an engineer. Humility is important for the engineer. आपने देखा engineers are very rude sometimes. Rude, काफी कड़क रहते हैं अपनी बातचीत में. Rude in personality, rude in conversation, dealing with the people. It is very difficult to manage your subordinates. आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स का काम है उनको गाइड करना, राइट? तो अगर आपके पास ही ह्यूमिलिटी नहीं है तो दे विल आल्सो नॉट कंफर्टेबल, दे विल रेज योर कंप्लेंट. काफी मैंने कंपनीज में बात करते हैं कि इंजीनियरिंग लोग स्टूडेंट्स में बहुत एटीट्यूड है. किस बात का एटीट्यूड? ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको पता है वो लोगों को नहीं पता है. दे हैव ऑलरेडी पास्ड, isn't it? So please come out from this misunderstanding. I'm quoting the word misunderstanding, right? Resilience, most important word. Don't give in when something negative happens, Be resilient and continue pursuing your goal. Resilient का मतलब है फ्लो में आप काम करते रहिए, फ्लो में चलते रहिए, आपको सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. Guys, if you trust me through this, I am connected first time you. I am not biased also. I have not taught you, but I have a very good feeling about you. आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. आई अप्रिशिएट दैट. अगर आप कर रहे हो ये सारी चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, घर में जाके पढ़ते हो, इस पे प्रिपरेशंस करते हो, शीशे के सामने पढ़ो, देखो, समझो, पब्लिक स्पीकिंग करो, आर्टिकल्स डाउनलोड करो, कितना सारा काम है. मैं पूरे दिन आपसे बात कर सकता हूँ, या कभी आगे मौका मिलेगा then I will conduct your interviews also like this. Professional presentation तो बहुत लोग दे देते हैं. Professional presentation क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके लिए भी एक अलग empathy. मैं बात कर रहा था empathetic communication. Be in tune with the customer's needs. कस्टमर को पहले बात करो, सुनो उसको ध्यान से. आप अपने को जेल अप करो. जल्दबाजी में आप ऑर्डर लोगे, क्या होगा? आप कुछ समझ रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, मिसमैच हो जाएगा, आपका भी प्रोजेक्ट चला गया, उनका भी चला गया ना. आपको कॉन्फिडेंस मिला और आपका एक बैड रिमार्क आपकी डिक्शनरी में ऐड हो गया, फॉर विच योर बॉस विल स्कोल्ड यू, मे बी यू विल बी फायर्ड. आपको एक और इंटरेस्टिंग क्विज बताता हूँ, वैसे मैं बाद में देखूंगा चैट विंडो में. विच आर द 2 टर्म्स फेमस इन द इंडस्ट्री गाइस? एनीवन इन द क्लास? 2 फेमस टर्म है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कोई बता के लिख के बताइए चैट विंडो में. आई एम हैप्पी टू सी दैट. Very simple words, 2 words which are frequently used in the industries, and I have the full confidence you should know, or you know and you should know. आपको मालूम है या आपको मालूम होना चाहिए, तो वो आप लिख दीजिए चैट विंडो में. which are the 2 common words. वैसे मैं बताने वाला हूँ अभी, will not waste much time, right? क्योंकि इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप लोग इंजीनियर से नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है. मंजीत सिंह जी एक्सपीरियंस नहीं है. एंड डोंट सेंड मी द डायरेक्ट मैसेज. You can reply all. You can select everyone. No experience, nothing. I'm sorry. Manufacturing भी नहीं है. No भूमिका. ठीक है. Because positive skills भी नहीं है. No skills. Simplicity भी नहीं है. I'm enjoying this session while getting the answer. Knowledge, creativity कुछ नहीं है. No. मैं बता देता हूँ. एक वर्ड है थैंक यू और दूसरा वर्ड है सॉरी.
these are very two important words. Thank you कब है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, या आपके बॉस आपको करेंगे ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, जो भी आप बताना चाहें, ठीक है। और दूसरा वर्ड है सॉरी। सॉरी, अगर आपने कुछ गलत काम किया है, आपसे गलत हो गया, तो देन द पर्सन से सॉरी, प्लीज क्लियर योर सैलरी, डू नॉट कम फ्रॉम टुमारो, थैंक यू वेरी मच। तो दोनों वर्ड करके वो रैप अप करके आप अपना बिल क्लियर कर लीजिए। कभी कभी आपको पगार नहीं मिलेगी, मतलब सैलरी नहीं मिलेगी, बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री में। एंड समटाइम इंडस्ट्री पीपल आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, क्योंकि वहां पर रुकने का काम नहीं है, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर आपके टीचर बोलेंगे ओके बेटा कल दे दीजिएगा, आज असाइनमेंट नहीं बनाया कोई बात नहीं है। तो ये सब हम लोग जानते हैं सब, मैंने इंडिया में काफी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो मैंने एक एक एरिया पे रिसर्च किया है और यह कर रहा हूँ। आप ऐसे सोचिए कि बच्चा कैसे बोलता है, मैडम मेरे को ये तबीयत खराब हो गया, क्या मैं कल असाइनमेंट जमा कर दूं? टीचर भी क्या बोलेगा? टीचर बोलेगा ठीक है, ओके, सबमिटेड, isn't it? सो बट इंडस्ट्री में क्या है, वहां उनको वर्क चाहिए, वहां कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिस इज फॉर श्योर। तो एम्पैथी में अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो उस चीज से बच जाएंगे जो मैंने बताया, सॉरी एंड थैंक यू। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर फायर्ड, क्योंकि वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं। एक दो बार वार्निंग भी देता है, कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, सुलझी हुई हैं, उनके बॉसेस भी समझते हैं कि ठीक है बंदे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक मौका और दे देते हैं, राइट। फिर भी वही वही काम कर रहा है, आपने देखा होगा, फिर भी वही काम कर रहा है। कभी कभी आपके टीचर ने भी आपको स्कोल्ड किया होगा, डांटा होगा कि आप बार बार वही चीज असाइनमेंट जमा कर रहे हो, या आप वैसे ही काम कर रहे हो, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये बहुत बड़ा गैप है गाइस। सो एम्पैथी, रेजिलियंस, ह्यूमिलिटी, ये सब अगर आप करना सीख लोगे, इसके बीच में डिफरेंस करना सीख लोगे और इनको अडॉप्ट कर लोगे, इंजीनियर्स इज ए वेरी गुड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम along with the soft skills। तो आप याद रखिएगा इस सेशन को, whenever you talk, अगर आप चल रहे हो, टॉक विद वॉक एंड वॉक विद टॉक, कि रुद्र सर ने बताया था, क्लास लिया था उन्होंने, क्योंकि समय कम है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टाइम आई एम नॉट एबल टू, बट मैं आपको मेन चीजें बता के जा रहा हूँ कि ये चीजें आप अपने को सेंसिटाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट पॉइंट है ब्रांड आइडेंटिटी, फिगरिंग आउट। आप जैसे मान लीजिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप जिस भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपका नाम है तो आपकी कंपनी का भी नाम है, isn't it? Yes or no? So पर्सनल आइडेंटिटी एंड क्रिएटिंग ए ब्रांड अराउंड इट इज इम्पोर्टेंट। डोंट बी जस्ट एन इंजीनियर। आप इंजीनियर नहीं होंगे, वो डिग्री सबके पास है, इंजीनियर नहीं भी होगे तो भी अच्छा काम करते हैं। यू कैन गो टू एंड टॉक टू द शॉप फ्लोर पीपल, इवन दे नो यू बेटर देन यू एंड मी, क्योंकि उसको पता है। एक आप किसी मैकेनिक को पूछ लीजिए, ही और शी इज नॉट दैट मच पढ़ा लिखा, डिग्री नहीं है, बट उसको काम आपसे हमसे ज्यादा आता है, एक एक चीज का आइडिया है। ही कैन ओपन द इंजन, ही कैन क्लोज द इंजन। Nobody, no confidence, no degree, nothing is required, because experience makes the perfection, right? बट यहाँ पर मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल्स में सारी चीजें आती है, आप बोलना, चलना, देखना, अच्छा वेल प्रेजेंट करना, आपके कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन में भी दिखना चाहिए, आपके बोलने में दिखना चाहिए, आपको इतना चीजें दिखना चाहिए कि मतलब आप उसको बोले कि ये एंजॉय कर रहा हूँ सारी चीजें। अदरवाइज डल फेसेस, आई नेवर लाइक डल फेसेस। एक्साइटमेंट नहीं है क्लास में, मैं बच्चे को बोलता हूँ आप चले जाइए, इवन यू कैन वॉश योर फेस, यू कैन कम बैक, बिकॉज स्पार्क ही नहीं है। हम एक दो बार उसको समझा सकते हैं, तीसरी बार तो हम उसको मदद नहीं, इवन गॉड विल नॉट हेल्प यू, इवन योर पेरेंट्स डजंट हेल्प यू लाइक दिस। ओके, सो आई एम श्योर यू गॉट द आइडिया अबाउट द जिस्ट ऑफ द this entire thing. So these are the some definitions of soft skill. I can say that मैंने एक टर्म कॉइन किया, एन एम्प्लॉयबिलिटी इनेबलर। अगर आपके ये सॉफ्ट स्किल आएंगे तो आपको जो जॉब मिलने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। लोग आपको समझ ले लेंगे कि आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। इवन यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट। एक और तरीका बता रहा हूँ, आपको जॉब चाहिए, आप उस कंपनी को लिखिए, कुछ उस तरह के लेवल पे काम कीजिए, आप उनके टच में रहिए, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो डोंट रिलाई ऑन एनीथिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, जस्ट ए फैसिलिटेट प्लेटफॉर्म। मैं आपकी थिंकिंग भी बदल रहा हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट में बोलता हूँ, व्हाई यू आर ओनली डिपेंडिंग ऑन प्लेसमेंट सेल, टेल मी। It is a universe is a platform cell, placement cell universe. How many emails you send to the employer, whether you are sending the good employee, your emails, and your interview skills, लोगों को interview skills नहीं है, कुछ सवाल पूछते हैं एम्प्लॉयर, वो जवाब कुछ और देते हैं। मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। देयर वाज वन कंपनी फ्रॉम नागपुर, अब हमारे इंस्टीट्यूट का, मेरा ही, तो I help my students to connect with that company. That was a very good company actually, and
They have shortlisted 15-16 students from my institute. I was there because my job is to bring with the connection. मेरी कोशिश होती है बच्चों को अच्छा platform देना as a faculty. It is not my prime job. No institute ask me कि Rudra sir you do. But as a professor, it is my duty to give the correct platform to my student. So that's why I generally do this way. So I was successful to bring that company. It was a IT company, LLP company. And this matter I'm talking about 2016, 2015 or 16. तो एक कंपनी को मैं लेके आया, उनको सारा इंटरव्यू कराया, and you know there was a girl student from MBA first year, maybe second year, first year. So उनसे पूछा गया कि are you ready to come into the Nagpur city for the work? You know what she answered? She said, no sir, actually my parents doesn't allow me to go outside. You see, this was the answer. Then immediately, you know, the person who was conducting the interview, he called up me. I was in my office cabin, and he said, sir, your students are not willing to pay, so why are you wasting your time and our time? Because they are professional, isn't it? Or you can't believe, because of the first interview answer, they cancelled that recruitment process. और मैंने भी cancel कर दिया because it was not, I never work against my ethics. तो मुझे लगा employer was right. Students are not trained that way, isn't it? Student को पता नहीं, ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए. अगर आपको नहीं जानना, why did you apply it? It means you are not respecting the time of others. आप समझ रहे हैं? It is very serious. आप लोग भी शायद गलती करते होंगे. तो until unless you are not sure, please do not apply in any company. ये मेरा एक सुझाव है, एक टिप है, क्योंकि इससे आपका तो एम्प्लॉयमेंट जा ही रहा है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं कनेक्टेड, जो आपके कोलीग्स हैं, उनका भी जा रहा है. बिकॉज कंपनीज आर गिविंग ओनली 1 or 2 टाइम चांस. कोई कंपनी तो एक ही बार चांस देती है. तो वो भी सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, आपके एथिक्स का पार्ट है. एथिक्स किसमें आता है? सॉफ्ट स्किल में, कि आप कितने एथिकल हो. आप अपने पहले पेरेंट्स से पूछो. फिर यू नो व्हाट आई हैव डन गाइस, फिर मैं पेरेंट्स से वो लेने लगा कंसेंट. फिर जब मैंने इसको रिवाइंड किया कि पेरेंट्स से पहले कंसेंट लेके आओ, अपने मदर फादर से, जब वो लिख के देंगे देन आई विल टॉक टू द कंपनी, अदरवाइज नॉट. सो इट वेंट वेल. फिर कंसेंट पेरेंट्स ने दिया एंड दे वर बाउंड टू गो. फिर भी अगर नहीं गया स्टूडेंट, फिर हमने उसको बैन कर दिया कि अब तुमको प्लेसमेंट, यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन जस्ट गो वेयरएवर यू वांट टू गो. Isn't it? Because nobody has the right to spoil the relationship of the institute and the employer. And it is one of the case study happened with me, and I have many studies also, even writing में है मेरे पास. Okay, so soft skill is playing a very important role in life. So I'm sure you have gone through. Photographers must understand how the camera settings like that. हमारा कौन है? हमारा settings soft skill. How we are well presented, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हम उन लोगों को लेके आ रहे हैं. कितना मुश्किल होता है एक कंपनी को अपने इंस्टीट्यूट में लेकर आना, उसको सारी हॉस्पिटैलिटी देना और रिक्रूटमेंट करवाना. आपके शायद प्लेसमेंट ऑफिसर आपको ज्यादा बता पाएंगे, यू नो, बिकॉज यू आर नियरेस्ट टू देम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारा काम है आपके सॉफ्ट स्किल, आपके एटीट्यूड का. तो आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम. एक और इंसिडेंट बताता हूँ. एक स्टूडेंट का मैंने यूरोप में इंटर्नशिप करवाया. सो आई सेंड, वो काफी एंथुसियास्टिक है, मेरे पास आती थी, सर मेरा करवा दीजिए, मैं चली जाऊंगी. मैंने उनको वहां भेज दिया. यानी यू कांट बिलीव गाइस, उस स्टूडेंट को होम सिकनेस हो गया, मॉम की याद आने लगी. बताइए, 14 डेज वहां रही और किसी को नहीं बताया, ना मुझे बताया ईमेल से, ना अपने इंस्टीट्यूट को बताया, वहां जिसमें मैंने इंटर्नशिप के लिए भेजा था, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में. और वहां से वापस आ गया एक फ्लाइट पकड़ के, और वो फ्लाइट भी छूट गया. तो आप समझ लीजिए, तो वो फ्लाइट भी छूट गया. So that you understand. Then I was more scared because I was responsible technically, ethically, legally. I was responsible. So finally, God saved me. Well, finally, she reached to her home, and then so you can see, if the students are not prepared well, why they are going. It is not a choice. It is not a willingness. आप लोग तैयार है तब तो आगे जाइए, नहीं तैयार है तो मत जाइए, isn't it? So it is very. तो फिर मैंने किसी को फिर भेजना बंद कर दिया. I stopped that window. I will not misuse my contacts, and I will not allow my students or any other student to misuse the time, because आपको पता है इतना लाइसेंस लेना, एम्बेसी से ये करना वो करना बड़ा मुश्किल है. तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये शायद आपके साथ भी होता होगा, या होने वाला है, या होगा आगे. सो प्लीज बी कॉशियस. एक कॉशन है, सावधानी आपने देखा होगा. Whenever train walks, आपने देखा होगा कॉशन लिखा रहता है.
red, danger, caution, like this. So it is that type of situation. अब now you can understand. Let's come back to this. मैंने आपको 2 एग्जांपल बता दिए, तो आप अपने को अलाइन करो, सेंसिटाइज करो कि आपको क्या करना है. So what exactly are soft skills? So soft skills are personal attributes needed for the success of the job. टाइम मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, राइट. बहुत से लोगों को नहीं आता. काफी लोग प्रोकास्टिनेटर है ना, जो टाइम को बर्बाद करते हैं, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो टाइम भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते. इट इज डायरेक्ट कोरिलेशन, राइट. नेटवर्किंग ये पता है, और उनको लगता है 2-4 फोन किए तो नेटवर्किंग होगी. नो, इट इज नॉट एक्चुअली. टीम वर्क आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं है आपने हैंडशेक कर लिया टीम वर्क हो गया. नो, आपको काम करना पड़ेगा गाइस, अदरवाइज पीपल विल रिमूव यू, पीपल विल किक ऑफ यू. काफी लोग आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपना बिजनेस करते हैं, जो बंदा काम नहीं करता उसको निकाल देते हैं. Just go wherever you want to go. The world is full of choices, isn't it? क्रिएटिव थिंकिंग, कितने आप क्रिएटिव थिंकिंग, कितने स्किल्स हैं, क्या आप आर्टिस्टिक हैं, आपने कोई मॉडल बनाई है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट मॉडल बनाई है, लाइक दैट. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कितने लोगों को आता है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में जाके उनका बचाव करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. सो दीज आर सॉफ्ट स्किल. इसके लिए आप ट्रेनिंग लीजिए, अपने इंस्टीट्यूट से बात कीजिए. कहीं आपको मेरी मदद की जरूरत है, आई एम फॉर यू. Then we will see. One few sessions I am happy to take like this. Okay. So these are soft skills, are personal character traits. अब आप समझिए, पर्सनल कैरेक्टर है आपका, ये आपका व्यक्तिगत कैरेक्टर ट्रेट है पॉजिटिव साइड में, और क्वालिटीज है विच ईच ऑफ. हमारे पास, सबके पास ये क्वालिटीज है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है, आपके पास नहीं है, या आपके पास है, मेरे पास नहीं है. Only we have to harness these things. WHO भी बोलता है, आप देखिए, these are the abilities for the adaptive and positive behaviors like individual. Even आप आजकल देखा होगा, एक सॉफ्ट स्किल का एक और पार्ट है अभी, जो हार्ड स्किल नहीं है बट सॉफ्ट स्किल ही है, मास्क को पहनना. मास्क, वियर द मास्क, राइट, ड्यूरिंग दिस इन्फेक्शन टाइम ऑफ कोविड. बट कितने लोग पहन रहे हैं, कितने लोग समझते हैं, दूसरे का प्रॉब्लम कर देते हैं. एक जिसको इन्फेक्शन हो गया, ही इज ए स्प्रेडर, इजंट इट. वो स्प्रेडर है, जस्ट लाइक एटम बॉम्ब, वो स्प्रेड कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो कम इनटू पिक्चर, क्योंकि किसी की बात मानना, समझना, देखना. यूनिसेफ ने भी लिखा है, a behavior change of a behavioral development approach designed for address balance of these knowledge, attitude and skill. नॉलेज ने बैक सीट ले लिया, 3/4 स्टेज पर है नॉलेज. नॉलेज आपकी कम भी होगी तो भी काम चल जाएगा, एटीट्यूड अच्छा होगा तो भी काम चल जाएगा, बट स्किल्स आपके पास नहीं है, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, या आप उस लेवल का नहीं लिखना पड़ता सीखते, तो मुझे लगता है गॉड विल हेल्प यू, और समटाइम गॉड विल आल्सो नॉट हेल्प. सो बोथ द थिंग्स आर वैलिड हियर. So guys, these are the theories. So I'm not wasting much time because of positive time. So I have to finish. I may be fast. Need for the soft skill, ये मैंने बता दिया. I think hope you have understood. Many business people think that success and logical, this way, that way, blah blah. All these categories. Mostly, things are information based. Data. Clouds these days. Many companies are working on common clouds. Like business environment is technological business environment, exactly. 80-90% businesses, even our online classes, whatever business you can talk, technology is involved, is that. Like you can take the example of ICT, information communication technologies, right? ICT. So what do we need soft skill? हमारे जीवन में soft skill की क्या requirement है? So soft skills are enables you. Enable means start. Soft skill आपको बताता है अच्छी तरह काम करना, meaningful interactions करना with others. लाइक जॉब की रिक्वायरमेंट है तो टीम वर्क में काम करो. लालच में मत करो कि मुझे जॉब मिल जाए, इसको ना मिले, उसको ना मिले. ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, काफी लोग इस तरह का थिंकिंग रखते हैं. तो वर्क इन ए होलिस्टिक वे, वर्क इन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे. इट इज इंपॉर्टेंट टू पोजेस द स्किल्स दैट एनहांस योर एम्प्लॉयबिलिटी. अगर आपको ये सारी चीज आ गई तो इससे आप अपनी जॉब के लेने के लिए आपकी एक तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऊपर से आपको जैसा जॉब चाहिए आप वहां तक पहुंच जाओगे या कोशिश करोगे. You will reach certainly at one point, maybe 1 or 2 years down the line for you. So that's why that is the need. So these are the guys' expectations from the companies, from the engineering students as far as. So that's why I've chosen that idea. Soft skill in terms of use the skills that are not technically job related. They include social skills. व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, interpersonal skills होना बहुत जरूरी है. आप बात कैसे कर रहे हो, कभी भी आप पेरेंट्स से बात करो, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स यू आर हियर, isn't it?
सो वी शुड रिस्पेक्ट देम। कितने लोग करते हैं, कितने लोग आजकल व्हाट्सएप के जमाने में आपस में बात करते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है, मैंने रिसर्च किया था, काफी लोग, वो लोग सब अपने मोबाइल से ही बात कर रहे हैं, मीन्स गैजेट के थ्रू बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली और नोएडा इज वेरी फार अवे। आई थिंक कल्चरल टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट। सो प्लीज स्टॉप दिस थिंग। आप उनके साथ बैठिए, खाना खाइए, बात कीजिए। आप अपना कोई एक्साइटमेंट है, कोई कोई आपने कोई एक्साइटमेंट नहीं भी है, कोई आपका कोई सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर डिस्कशन कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। सो दैट विल गिव यू इंटरपर्सनल स्किल्स मोर फास्टर देन एनीबॉडी एल्स, राइट? सारे सॉल्यूशंस आपके आसपास है, बट आपको देखना होगा कौन लोग मेरे साथ है, कौन लोग नहीं है, राइट? सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, उनको पॉजिटिवली सोचिए कि ये मेरी मदद कर सकता है, या मेरी सिस्टर है ये मदद कर सकती है। आपसे छोटे भी मदद कर सकते हैं, आपसे बड़े भी मदद कर सकते हैं, आपके बराबर वाले भी मदद कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द स्किल्स दैट डिफाइन योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल एंड हाउ यू अप्रोच लाइफ एंड वर्क एज वेल। सो दिस इज 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस में आज आपको देके जा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, टू हायर एम्प्लॉयज विद टुमारोज स्किल्स, स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन क्वेश्चन। आप कोई आपको ये पूछता है स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन बताइए, इमेजिनेशन, और आपसे जरूर पूछेंगे वो, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी हायरिंग वाले लोग होते हैं ना, वो मैनेजमेंट वाले होते हैं। आपने देखा, वो हार्डकोर इंजीनियर्स नहीं होते कि मशीन कैसे काम करेगी, डेरिवेशन कैसे हुआ है, ये आप मुझे आजकल तो एक और चीज बताता हूँ आपको, शायद इधर आपने देखा नहीं, केस स्टडी देते हैं आपको। आजकल इंडस्ट्रीज केस स्टडी देती है। आप यू नेम ए कंपनी, दे आर हायरिंग पीपल बेस्ड ऑन द केस स्टडी। जो केस स्टडी को जल्दी सॉल्व करता है, इफेक्टिव करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। Even Google never go to any institute in India to hire the person. Google always hire the crazy people who are very good in strategy, provocative inquiries, creative problem, agility, resilience. ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये खैर मैं आपको भेज दूंगा, प्रोफेसर इंदौलिया को मैं मेल कर दूंगा, वो आपको बता देंगे, आप देखिएगा, इस पर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? 15 इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछे ही जाएंगे इन सब वे ऑफ द अदर। तो आपकी तैयारी कितनी है? अब जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, व्हाट इंस्पायर्स यू? आप लोग यू आर लुकिंग हियर एंड देयर लाइक दैट, इजंट इट? आप इधर उधर देखेंगे या सोचेंगे, कुछ बात नहीं, प्रॉम्प्ट आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। मैं कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। व्हाट इंस्पायर्स यू? आप बोलिए, टुडे आई हैड अ ग्रेट लंच, ड्यूरिंग द लंच आई वाज गोइंग विद द टॉपिक दैट इंस्पायर्स मोस्ट मी। जॉब डन गाइस, कोई सोचना नहीं, कुछ बताना नहीं। आई जस्ट टेकन द एग्जांपल. Even I met yesterday, it was a phone call came, and somebody, my uncle, my grandmother was telling me that thing inspires me. I was thinking, my mind was thinking to think that way very seriously. Then tomorrow I will go and talk to my professor regarding this. एक prompt answer होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए. Just like a bullet gun is like that is now triggered, it is being fired. It is not like मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगी like this. It is good that it is your behavior and nature, but try to escalate, उसको थोड़ा ऊपर बढ़ाइए, try to escalate upside for this and prepare yourself like this. Okay, so guys, ये एक nutshell में बता रहा हूँ. It is just like a battery charger, soft skills for your future, strategic imagination, proactive inquiry, creative agility, liveliness, quickness and resilience, flexibility. कितने लोग flexible होने से भी बहुत काम बन जाते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल आपको वैसे नहीं बनना कि आपने किसी की सैलरी नहीं दी, पगार नहीं दी, उससे बात नहीं की, आपने उसको मेल नहीं किया. फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ निगोशिएशन. ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा एक चार्जर लगाया है, आप रिचार्ज करिए, जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हैं, आप सॉफ्ट स्किल के अपने जो टेम्परामेंट को रिचार्ज कीजिए, बार बार कीजिए. आप बार बार करेंगे, आपको लगेगा हाँ जो मैं इस लेक्चर में आया तो इट वाज वर्थ प्रोवोकिंग, आई एम यूजिंग दिस. किसी से भी बात करनी है, सब्जी वाले से बात करनी है, आप आटे वाले से बात करनी है, आप चाय वाले से बात करनी है, प्यार से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए. डियर सर, मैम, सर करके बात कीजिए. कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप किसी से भी सर करके बात करेंगे. इवन पियोन इन योर इंस्टीट्यूट, मेरे यहाँ पियोन आते हैं, अभी आए थे, आपका लेक्चर चल रहा है, सर हाउ मच टी? आई सेड ओके, 2 cup of coffee is required. So there is no need, guys. We should come out from this rigid culture of our society, isn't it? Allow the fresh air in your mind, isn't it? Through the soft skills and also it's work ethics very important. आराम से काम कीजिए. अगर आप असाइनमेंट नहीं कर पाए, टीचर प्रोफेसर को मेल लिखिए, मैडम आप अच्छे होंगे, थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई विल सबमिट माय असाइनमेंट बिकॉज आई एम हैविंग दिस इशू, सो आई मे बी लेट इन दिस वे. तो थोड़ा मेल कर दीजिए. इससे 2 फायदे होंगे, एक तो टीचर को इन्फॉर्मेशन मिल गई, दूसरा आपको लिखने का तरीका आ जाएगा. द मोर यू राइट, द मोर यू विल गेट
more practicing, I should say, practicing. So these are the illustrative soft skills: courtesy, teamwork, self-discipline, conformity of social norms, language of proficiency, problem solving. काफी लोग हैं इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बेस्ट बताओ क्या होगा, मुझे अपनी सेल्स बढ़वानी है, क्या होगा। सेल्स ऐसे तो नहीं बढ़ जाएगी, आप गए आपने कुछ कर दिया, उसके लिए आपको एक पिच बनाना पड़ेगा, एक आइडिया बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, देन यू एबल टू अंडरस्टैंड, इजंट इट। तो वो आप देंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे आपको आना चाहिए और आप कर सकते हैं, यू हैव द पोटेंशियल, बट अलाइन योरसेल्फ, डू नॉट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर। जैसे मैंने बताया, प्रोकास्टिनेट मत करिए, ऐसे मत सोचिए आज केवल कर रहा है ये टीचर तो बोलता ही रहता है। काफी स्टूडेंट का मैंने देखा है, दे हैव द वेरी रॉन्ग परसेप्शन अबाउट देयर प्रोफेसर्स, they sometimes foul mouth also at the back end after the session also। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाउल माउथिंग वो उन पर नहीं कर रहे हैं, नेचर इज फाउल माउथिंग विद देम। तो आपने देखा होगा, आपको घूमते हुए मिल जाएंगे इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद आपको कहीं मार्केट में, मुझे काफी स्टूडेंट मेरे मिलते हैं ड्यूरिंग द, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ अच्छे बच्चे क्या चल रहा है, नहीं सर कुछ नहीं अभी ये कर रहा हूँ, वही 20-50 हजार का जॉब कर रहे हैं, उसमें कितना खर्च करेंगे कितना बचाएंगे। Every statistic in front of me, I can argue also, I can discuss with you, I can calculate with you, isn't it? So do not come into this cycle, right? So hard skill guys versus soft skill, proficiency in a foreign language, कुछ foreign language वगैरह भी आप सीख सकते हैं। Suppose you are aspiring to go in Europe after 2-3 years, you start working on from today, डिग्री सर्टिफिकेट कुछ कर लीजिए, टाइपिंग स्पीड जैसे मैंने अभी बताया मेल करिए तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, मशीन ऑपरेशंस आप समझेंगे। So these teachable abilities of soft skills, that is very important to quantify। Soft skill क्या, कम्युनिकेशन, आपको बोलचाल का तरीका, आपके वर्ड कैसे हैं, आपके वर्ड इन्फ्लुएंशियल है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रखते हैं, आप लोगों को प्यार से बात कर रहे हैं, अथॉरिटेटिव तो बात नहीं करें, नहीं आपको करना है जस्ट डू इट, नो, फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए आपने देखा एरो का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। लीडरशिप, लीडरशिप इज वेरी गुड, लीडर्स आर ऑलवेज देयर, बट देयर आर सम स्टोरीज व्हिच वी हैव बैड लीडर्स। Bad leaders are those people, those who never take their team with them, right? Leadership is also very good quality, generate these things। तो leadership भी guys soft skill का ही काम है, नहीं तो आप पूरी जिंदगी भर एक इंजीनियर बन के ही रह जाओगे, आप प्रमोट नहीं हो पाओगे, या आप प्रमोट के लायक नहीं रहोगे, या वहां तक पहुंचोगे तो कर नहीं पाओगे। टीम वर्क है, टीम वर्क नहीं आता है, आप लोगों के साथ काम नहीं करते कि तुम ये करो मैं ये करता हूँ और कल हम ये करेंगे, हम एक्सचेंज कर लेंगे। You are thinking always the work personalized, please come out from your personal work to the team। टाइम मैनेजमेंट I've already given, respect the time, time will respect you also। जो काम जब करना है तो करना ही है, चॉइस नहीं है। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको गाइस, नोट कर लीजिए, जो टीचर ने बोल दिया, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, या आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है तो कर लेना ही है। इट इज नॉट दैट कोरोना काल है मैं कल कर लूंगा परसों कर लूंगी, लाइक दिस यू नो, अदरवाइज यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप अपने को ही बेवकूफ बना रहे हैं, और अगर बनाएंगे तो क्या होगा बाद में, फिर डू नॉट गो, डू नॉट ब्लेम योर इंस्टीट्यूट, डू नॉट ब्लेम योर प्रोफेसर, डू नॉट ब्लेम योर समबडी कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो मैं आपको एकदम शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ, आई कैन ओपनली आर्ग्यू 4-5 साल के बाद भी हम दोबारा मिल सकते हैं। ओके, सो इट इज एन अलार्मिंग साइन, क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आप कर लीजिए, आपको करना जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल, वर्बल, वर्बल एंड रिटेन। वर्बल का आपको जानकारी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम, डेलीगेशन, डेलीगेशन इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन ऑफ द टास्क, कि कुछ लोग लिखने में अच्छे हैं, कुछ लोग पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ लोग सॉल्विंग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो डेलीगेशन ऑफ द वर्क इज रिक्वायर्ड। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है, जिसका लिखने का काम नहीं है उसको दूसरा काम मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, बैकफायर, दैट सिचुएशन विल बैकफायर। सो दिस इज हैपनिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैंने बता ही दिया। कितने लोग जानते हैं, सब लोग सोचते हैं मैं एमबीए में कर लूंगा, भाई क्यों कर लेंगे एमबीए में, पहले क्यों नहीं कर सकते। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, अभी क्यों नहीं कर सकते, बाद में क्यों करेंगे। सो यू नो, आई ऑलवेज एंजॉय विद द आंसर, फनी आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट, सर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे मॉम डैड ने बोला, एवरीथिंग दे लिंक विद द मॉम एंड डैड। You know, guys, what I generally say, I said, first you remove this, your mom and dad. Otherwise, these are the people who will kill you after 2 years. जो अभी प्यार से बात करते हैं ना, वही लोग आपकी टांग खींचेंगे। और सबसे नजदीक कौन है आपके पास, आपके पेरेंट्स। आप देखिएगा, these are fixed models, isn't it? तो आप इसको अगर आजमाना चाहें तो आप आजमा सकते हैं। मैंने काफी रिसर्च किया है लाइफ के मॉडल्स पे, तो मुझे आंसर पता है, बट आप देख लीजिए, ठीक। हाँ,
So foreign languages, Google Analytics, search engine optimization, yeah, hard skills. That means you should be good in, you know, technical skills, like hard skills like this. Okay, so these are the areas, guys. I'm sure you got that gist of the entire talk. Okay, बाकी मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ. कंप्यूटर में आता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए. मैंने काफी लोगों को देखा कंप्यूटर इंजीनियर में ऑफिस सूट का नहीं पता, गूगल सूट का नहीं पता, कौन से फीचर कहाँ पर छुपा हुआ है वो नहीं पता. अब बताइए कैसी तैयारी है. CRM का नहीं पता, नेट ऑनलाइन नेटवर्किंग कैसे होगी, डेटा एनालिटिक्स कैसे होगा. दिस टाइम आल्सो आई एम टीचिंग वन कोर्स ऑफ सम अदर यूनिवर्सिटी, डेटा एनालिटिक्स, फुल फ्लेज्ड कोर्स. कल मैंने आर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था. What is R programming? What are the tools? What is the feature? What is the sign of hashtag we are generally using for it? How the functions are derived? एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए guys, तब आपकी तैयारी पूरी मानी जाएगी. वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट क्वेरीज, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम, काफी लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पूछो तो वो कुछ C++ जावा बता देते हैं, कुछ और बता देते हैं, कुछ और बता देते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम मींस लाइक मे बी विंडोज, मे बी सम अदर प्लेटफॉर्म. तो पीपल शुड यू नो डिफाइन कैटेगरी, क्योंकि उनको बताया नहीं जा रहा है, या उनको बताया गया तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. मैथमेटिक्स में चले जाइए, स्टैटिस्टिकल, मार्जिन कैलकुलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में सब लोग वीक है ज्यादातर. इसलिए बहुत सारे फैकल्टीज का रिसर्च पेपर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग. इंटरप्रिटेशन का ही तो सारा काम है पब्लिकेशन. आप अपने बच्चों को यूज कर सकते हैं. ये टीचर्स के लिए कुछ मेरा निवेदन है, एक सबमिशन है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए अपनी रिसर्च में. आप उनको ट्रेन कीजिए तो आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है. वो लोग भी सीखेंगे, आप लोग भी सीखेंगे. कुछ चार्ट्स बना दीजिए, कुछ स्टैटिस्टिक्स मॉडल बना लीजिए, कुछ बुक्स ले लीजिए. आपको कुछ लगता है आप मेरे से आप कनेक्ट हो गए तो कुछ बुक्स चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा. बट आपका काम है पढ़ना, उसको देखो. फोरकास्टिंग है, इंडेक्स नंबर है, डेटा मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है. विच टेक्निक इज बेस्ट? Even many people are not aware about which is the current version of this software. आज 11 फरवरी 2022 में कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसका भी उसको नाम, नंबर, पता, वर्जन का नहीं मालूम. सो स्कैरसिटी ऑफ द अवेयरनेस. अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिलिंग मालूम होना चाहिए, इनवॉइसिंग क्या है, कलेक्शन क्या है, रिकवरी कैसे होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, टैक्सेशन कैसे होगा, रिपोर्टिंग कैसे होगी. लाइक ये हार्ड स्किल्स है. इसमें भी मुझे लगता है काफी लोग वीक हैं. दैट आई कैन say it may be positive side, but yes, if you are तो हार्ड स्किल भी करना है, सॉफ्ट स्किल तो करना ही है, हार्ड स्किल भी करना है. सोशल मीडिया एनालिटिक्स है, मार्केटिंग एनालिसिस है, ट्रेंड्स है, परसेप्शन एनालिसिस है, बहुत सारे. सोशल मीडिया से आजकल आप देखिए चुनाव हो रहे हैं, काफी लोग ट्विटर एनालिटिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और एनालिटिक्स कर रहे हैं कि लाइक विच पार्टी विल बी लाइक दिस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉलेज मस्ट बी द मेथोडोलॉजी यू शुड फॉलो, ग्रामर, लेक्सिस, फोनोलॉजी, लर्निंग स्टाइल. I teach the professors also that what should be the pedagogy. काफी टीचर्स आते हैं मेरे पास, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए. लाइक टीचर्स सर मेरे क्लास में स्टूडेंट नहीं आते और दे बिहेव डिफरेंटली, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ टीचर्स के लिए कि यू जस्ट बी एम्पैथेटिक विद योर स्टूडेंट. आप उनको थोड़ा अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, उनको मेल भेजिए, उनको बुलाइए. वो डेफिनेटली कुछ लर्न करेंगे तो आएंगे. अगर एक दो स्टूडेंट आ गए, वो दूसरे स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट को लेके आएंगे. लाइक दिस द कल्चर continue. So hard skill, soft skill, I think we all need, guys. It is not only for the student, it is for we faculties also. Even आज आप मुझसे बात करें, मैं भी लिखता पढ़ता रहता हूँ, काफी मेल भेजना, करना, ये सब, बिकॉज मैंने इसको अपना लिया है. तो मेरी कोशिश है, मेरा अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको, आप लोग भी जल्द से जल्द इसको अपना लीजिए. उस तरह से आपका सारा सिस्टम पॉजिटिविटी आने लगेगी, आपको लोग पहचान करने लगेंगे, आपको डायलॉग करना आ जाएगा, आप जल्दी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, सीख पाएंगे सारी चीजें. ये चेकलिस्ट में आपको कुछ दे रहा हूँ. हैव यू कवर्ड योर कोर फंक्शन एरिया? सम क्वेश्चंस फॉर यू. हैव यू कवर्ड द स्किल्स यू हैव एक्वायर्ड ओवर द इयर्स? हाउ टू यूज इट? काफी आपने स्किल्स ले लिए बट उसका यूज नहीं कर, तो क्यों किया आप? इट वाज ए वेस्टफुल एक्टिविटी, इजंट इट? क्योंकि आपकी पढ़ाई भी बदल रही है, सिलेबस भी बदल रहा है, टेक्निक्स भी बदल रही है, टूल्स भी बदल रहे हैं, इजंट इट? हैव यू कवर्ड द स्किल्स यू हैव एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन और ट्रेनिंग? कितनी स्किल्स करते हैं, कितने लोग किस तरह के टॉपिक में बात करते हैं, कितने लोग किस तरह का ट्रेनिंग करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं. सो मेनी थिंग्स लाइक, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी मैंने दे रखे हैं. हैव यू कवर्ड द टूल्स यू हैव अकम्प्लिश योर टास्क? कुछ लोग ऐसा है, सारे दिन सारा काम करते बट फिर भी पेपर पर नहीं पब्लिश करते, फिर भी अच्छा वो नहीं है. स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं, फिर भी वो 1-2 इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते. So it means there is some problem in ourselves. We are not doing the right way as it is being required, as it is being expected, isn't it? So that is the idea. And the last question, guys, is here you can see, have you covered your soft skills? So maybe less, maybe more,
depending upon your situation, depending upon your idea. How much you are working, the more you work, the more gain you will get. Simple answer, simple strategy. So top 20 skills है, जल्दी से देख लीजिए. I think I'm almost nearest to the end. ये बाकी मैंने बता दिया, कुछ नई नई चीजें हैं. Adaptability ये बहुत जरूरी है, adaptability. और कोलैबोरेशन जरूर कीजिए. मैंने अब ऐसे बता दिया है, टीचर स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करे, स्टूडेंट टीचर के साथ कोलैबोरेट करे, वो आप लोग डिसाइड कीजिए. आई एम लीविंग समथिंग टू यू दैट यू कैन वर्क. तो स्लोली यू ऑल विल अंडरस्टैंड. जब आप समय बिताने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, कोई बंदिश में मत पड़िए. एक और सबसे बड़ा सवाल है आप दोनों पार्टीज के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि डोंट डू एनी वर्क इन कंपल्शन, जस्ट डू द वर्क इन फ्रीडम. फ्रीडम से करिए. आप ये सोचिए कॉलिंग है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे को करना है. आई वॉन्ट टू लिव, आई एम गेटिंग द सैलरी फ्रॉम दिस. एक वो लाइवलीनेस होनी चाहिए. वो आप देखेंगे, आप अपने को ट्रेन करेंगे. अदरवाइज बिकॉज देयर विल बी मोर कंपटीशन टफ आल्सो फॉर द टीचर्स, फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो. Foreign, because of FDI, foreign direct investment, many faculties are coming in India. Many students are coming in India for this. So our competition. So we have to prepare ourselves for that level, isn't it? So that is really important. So important is business. I think I've already done this part. So you can see a profile defined for 60 soft skills, employee 6. So इसकी मैं list अभी दे रहा हूँ. टॉप 60 सॉफ्ट स्किल्स, अभी 60 हो जाएगा. तो देखिए, मैथ, सेफ्टी, कर्टिसी, ऑनेस्टी, ग्रामर, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम स्किल. आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने लोग शाम को देख के बात करते हैं? आई कांटेक्ट है. आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है. बट ऐसा नहीं आप उसको घूर रहे. डोंट से एंड कम टू मी सर, आपने बताया था, मैंने आई कांटेक्ट कर लिया. राइट. सो cooperation, adaptability, follow rules, self-directed, good attitude. Attitude नहीं, good attitude. Attitude is always, whenever you say attitude based, it is more functional towards negative side. इसलिए attitude के आगे good लगाना है आपको. ठीक है. राइटिंग स्किल्स, ड्राइवर्स लाइसेंस, डिपेंडेबिलिटी, एडवांस मैथ, सुपरवाइजिंग, सेल्फ सुपरवाइजिंग करिए. काफी लोग हैं, आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट एबल टू ओपन देयर कैमरा. राइट. अटेंडेंस, पर्सनल एनर्जी, वर्क एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू मेजर. मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं अपने घर में, बाहर में, वो सारी चीजें, मोटिवेशन, पर्सनल पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड. राइट. वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन का मान सम्मान दीजिए. वैल्यू एजुकेशन, उसका यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए. राइट. पर्सनल केमिस्ट्री, वंडरफुल क्वेश्चन. आजकल आपने देखा होगा, आजकल स्पाउसेस पे बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है. पर्सनल केमिस्ट्री इज गोइंग हियर एंड देयर. वो क्यों हो रहा है? क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है? आजकल इमिटेशन का प्रॉब्लम है. आई ऑलवेज टॉक विद माय पर्सनल फ्रेंड्स एंड माय फैमिली इज दैट व्हाई देयर इज इमिटेशन. देयर शुड नॉट बी इमिटेशन. फेसबुक पे लोग देख के, एक दूसरे का देख के घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं. तो सॉफ्ट स्किल जिसका अच्छा होगा, वो कहीं भी मात नहीं खाएगा. मात खाने का मतलब ये है कि वो रुकेगा नहीं, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रादर वो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम. विलिंगनेस टू लर्न, वंडरफुल सॉफ्ट स्किल, विलिंगनेस टू. पढ़ने की इच्छा, समझने की इच्छा, सीखने की इच्छा भी बहुत होना जरूरी. कॉमन सेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैंने बता दिया. नॉलेज ऑफ फ्रैक्शंस, रिपोर्टिंग वर्क, यूज ऑफ रूलर्स एंड कैलकुलेटर्स, वांटेड टू डू अ गुड जॉब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये सारी चीजें. हाउ टू बिजनेस वर्क, अवेयरनेस, कैसे जॉब है मेरे एरिया में, मेरे को किधर जाके जाना है 4 साल के बाद. तो स्टूडेंट के पास ये सारी तैयारी वो खुद से कर सकता है. राइट. सो ये सारी चीजें, आई थिंक, जॉब एप्लीकेशन में फाइल कैसे करना. काफी लोगों को ये ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं आता. मैंने काफी लोगों के रिज्यूम्स को चेंज करवाया है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर्सनली बात करते हैं वो, तो कंपनी क्यों उनको हायर करेगी? वो उसका पढ़ के ही देख के रिजेक्ट कर देते हैं. हार्डली इट विल टेक 10 seconds टू स्कैन द रिज्यूमे एंड दे डिसाइड दिस. राइट. सो ये बाकी सारी चीजें, ये लिस्ट में आपको दे दूंगा, तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा. सो आई एम लीविंग सम क्वेश्चंस टू यू. दिस इज फॉर स्टूडेंट करियर रेडीनेस. ये मैंने कुछ रिसर्च किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ डाटा है. रेस्ट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड इम्पोर्टेंट. सेल्फ रेटिंग, आप अपनी रेटिंग खुद से देख सकते हैं. How much you are good at in negotiation, networking, interviewing, creativity, teamwork, like this. Okay. So I think I'm done almost. So guys, thank you very much for your patience for listening. If you have any questions, you can just let me know. So I feel that I'm on time. I think 10 minutes delay, but anyway, we can manage. So thank you very much, guys. If you have any question, I'm happy to answer, and stay in touch. Yeah. Students, any Yeah. queries? Students, any queries? Any question you want to ask? Yes, guys, if you have any query related to this course or anything, I'm happy to answer, or I will contribute.
Over to you, sir. Done. Yeah, I'm done, ma'am. Yes. Thank you, sir. If you have any questions from the faculties and the students, I hope you had a good understanding for this. Yes, it was really insightful and resourceful, actually. All the slides, all the points that you have mentioned, and I'm sure our students are also going to be highly beneficial. It will be highly beneficial for them, even in the future. So, Right. Thank you, sir. You used the word so nicely about the soft skill. Even I noted many words. So please use Alka, ma'am, because it is good that you are more experienced, but now you have a lot of responsibility to guide the students. Yeah, very few words I have noted it, and definitely I'll use in my conversation. Haji, please. Yes, And I'm there. If you need anything, you can take my number or you can share. You must have my email ID. I'm happy to share. Sure, sir. Yeah. Vyushi, over to Vyushi. yeah. So, on behalf of the entire DTC team, the students, our faculty members, we are really grateful that you have shared your valuable time with us. So we are really happy, and we would love to see you again for another Sure, session. ma'am. My pleasure, ma'am. All pleasure is mine. Thank you very much. Thank you once again, Alka ma'am and Ajay sir, for giving us the opportunity and inviting sir for such a wonderful session. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And we'll meet Thank you you, guys. sir. Thank you very much, one and all. And keep practicing and wish you good luck and God bless you all. Thank you. sir. Thank you, students. Thank you, students. Thank you, Vyushi. Thank you, ma'am.